Hello everyone. In the continuation to our previous video students, today we are going to discuss the last method to concentrate the ore and that is leaching. Now जो leaching जो method है students, it is very important from the exam point of view. So what we do here, we take the ore in a suitable solvent. Now what happens, that ore will form a complex in the solution and you should know this thing, जो आपके जितने भी complexes होते हैं, they are all soluble in solution. They are all soluble in the solvent. Now जो आपके गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं ओर में वो अनडिजॉल्व रह जाते हैं एंड जो ओर होगा आपका जो आपको चाहिए उसमें से मेटल वो जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा. नाउ कॉम्प्लेक्स जो आपका सॉल्यूशन में डिजॉल्व है दैट सॉल्यूशन इज़ प्रोसेस्ड अगेन टू गेट द ओर बैक. इज़ दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़नी है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर एंड लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. Now to study this you should know certain things that आपको bauxite ore में से what you have to extract and what are the impurities. So you have to write down these things. So first of all you have to write down कि bauxite is the principal ore of the aluminium. Now bauxite contains alumina Al2O3, silica SiO2, oxide of iron and oxide of titanium. Now what you want here, you want to extract Al2O3 and these three are impurities in the bauxite. You have to remove these oxides from the bauxite. Is that clear? Now leaching of aluminiums involve three major steps students. You have to write down these three steps with the reaction. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप इज़ द डाइजेशन ऑफ बॉक्साइट ओर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. व्हाट वी डू हेयर, आपका जो बॉक्साइट ओर है वी हीट दैट ओर at a temperature 200 to 250 degrees Celsius and at a pressure 35 to 36 bar with sodium hydroxide solution. That is, you have to write down the reaction. Al2O3 reacts with sodium hydroxide water at a temperature you can see on the screens to form sodium aluminate. You have to write down this reaction. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है यू शुड नो कि आपका जो एल्यूमिना और जो सिलिका है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाएगा एंड जो आपके ऑक्साइड ऑफ आयरन और टाइटेनियम है दे विल रिमेन इनसॉल्यूबल. ठीक है, विच कैन बी रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन. सो यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी रिएक्शन थी एल्यूमिना की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दैट यू हैव टू राइट डाउन एंड यू कैन राइट दिस थिंग इन द वर्ड्स. सो यहाँ पर देखिए सोडियम एल्यूमिनेट जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर दैट इज़ ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है जो कि सॉल्यूबल होगा सोल्यूशन में. ये आपको प्रिंसिपल साथ में ध्यान रखना है. हमने क्या किया है यहाँ पर ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है सोडियम एल्यूमिनेट जो कि आपका बेसिक होता है नेचर में. नाउ व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दिस, वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस बेसिक कॉम्प्लेक्स बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर. So second step is neutralization of sodium aluminate by carbon dioxide. Now you have to write down this thing in the reaction form. Sodium aluminate reacts with carbon dioxide to form hydrated alumina. ठीक है, आप देख रहे हैं Al2O3 डॉट साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट आपके साथ फॉर्म हो रहा है इस सेकेंड स्टेप में. नाउ you want to extract alumina, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्साइट. Al2O3 आपको चाहिए. नाउ यू हैव टू रिमूव these water molecules from here. सो लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यू विल हीट दैट थिंग टू गेट द Al2O3.
So what you are doing, you are heating Al2O3.3H2O at a temperature 1470 Kelvin. So what will happen, these water molecules will evaporate and you will get the sodium alumina in the last step. So you have, if you write down these 3 steps with the reactions, you can easily get the full marks. 3 mark का question आपसे पूछा जाता है, you can easily score the 3 marks in this type of question. Is that clear? Very simple. Leaching of aluminium is done. Nothing more here to make you understand. Now next जो important है यहाँ पर वो है आपका leaching of gold and silver. So let's do that. Now you know this thing कि जो आपका gold, silver, ये जो metals हैं, they are noble in nature and they are found in the native state in the nature. So इसमें जो impurities रहेंगी वो आपकी क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है. सो यू विल राइट द फर्स्ट पॉइंट हेयर दैट गोल्ड इज लीच्ड आउट फ्रॉम इट्स नेटिव स्टेट एंड हैज़ द इम्प्योरिटीज लाइक क्ले, sand and the other ores. Now what you will do here, let's understand first of all by a setup. For example, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने ओर लिया, ठीक है, आपने ओर लिया यहाँ पर गोल्ड का. नाउ what you will do here, leaching का principle क्या है, that you have to add a suitable solvent. So here for the leaching of the gold you will add sodium cyanide here as the solvent. So यहाँ पर जब आप sodium cyanide add करेंगे in the presence of air, that is in the presence of oxygen, what will happen, जो आपके गोल्ड का जो एटम्स हैं, गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपका सोडियम साइनाइड आयंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे. दैट इज़ आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ दिस अगेन क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपके पास गोल्ड के इस तरीके से एटम है, ऊपर से आपने ये सॉल्वेंट ऐड कर दिया सोडियम साइनाइड का, ठीक है, इसमें साइनाइड के आयंस थे. तो ये जो गोल्ड के जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे या गोल्ड के जो एटम्स होंगे वो इसके साथ जाकर इस सॉल्यूशन में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे एंड दैट विल बी सोडियम डाइसाइनोऑरेट. दैट इज़ गोल्ड के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे इस सॉल्यूशन में, और नीचे जो आपका यहाँ पर रह जाएगा वो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी. दैट इज़ क्ले और सैंड जो भी है वो नीचे रह जाएगा, एंड जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो साइनाइड आयंस के साथ जाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे. दैट इज़ वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आपके पास नीचे इम्प्योरिटीज़ रह गई यहाँ पर, ठीक है, दीज आर इम्प्योरिटीज़, एंड ऊपर यहाँ पर जो सोल्यूशन था इसे आप फिल्टर कर सकते हैं, अलग से ले सकते हैं, अलग से निकाल कर आप इस सोल्यूशन को दोबारा से प्रोसेस करेंगे. एंड प्रोसेस करने के लिए हम सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं. ना मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, सिंपल सी आपने ये चीज़ें लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा. दैट इज़ इस कॉम्प्लेक्स में से इस कॉम्प्लेक्स में से जो गोल्ड के जो एटम है उसे डिस्प्लेस कर देगा एंड यहाँ पर आकर जिंक, फॉर एग्जांपल जिंक से हम रिएक्शन कर रहे हैं तो जिंक यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जगह ले लेगा, और जो गोल्ड है वो आपका प्रेसिपिटेट में आपको मिल जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will write down that gold ore is leached with dilute solution of sodium cyanide in presence of air or oxygen to form a soluble complex with the cyanide ions. Is that clear? So you will write down the reaction gold, that is gold ore या elemental gold जो भी है आपके पास, ठीक है, ore की फॉर्म में ही है अभी आपके पास. So you are treating this with the sodium cyanide solution, that is water भी है आपके पास, in presence of oxygen to form sodium डाइसाइनोऑरेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूबल है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा. नाउ इसी चीज़ को आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट आपका जो गोल्ड है वो साइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करके आपका इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें गोल्ड जो है +1 स्टेट पर आपका कन्वर्ट हो रहा है, 0 से +1 स्टेट पर जा रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन में गोल्ड आपका.
प्लस में साथ में आपके हाइड्रोक्साइड आयंस हैं. नाउ बैलेंस करनी आपको यहाँ पर आनी चाहिए रिएक्शन. यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, सो यू कैन डू दिस थिंग बाय योरसेल्फ. नाउ सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट soluble complex is then treated with zinc, that is more reactive metal, to carry out the displacement reaction. So you have to write down this in a chemical reaction form, that sodium dicyano complex जो है आपका zinc के साथ react कर रहा है. zinc more reactive metal होने के कारण यहाँ से gold को displace कर देगा, ठीक है, एंड यहाँ पर गोल्ड आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा. यू कैन कलेक्ट दी दैट प्रेसिपिटेट. इज़ दैट क्लियर? सो इसी को आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट दिस कॉम्प्लेक्स इन द आयनिक फॉर्म यहाँ पर रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म दिस, टू गो इनटू द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड गोल्ड जो आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है. इज़ दैट क्लियर? सो इसी तरीके से आप सिल्वर की लीचिंग भी कर सकते हैं. सेम चीज़ें यहाँ पर होगी. जो गोल्ड है यहाँ पर गोल्ड की जगह आप सिल्वर ऐड कर देंगे, एंड सिल्वर भी आपका 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाएगा. सेम कॉम्प्लेक्स, सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, दैट इज़ सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है. एंड इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा से आप फिर जिंक के साथ ट्रीट करवाएंगे. कहने का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ 2 स्टेप्स हैं यहाँ पर विच यू हैव टू मेमोराइज, क्योंकि आपको रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं कई बार हाफ ऑफ मार्क में, लीचिंग ऑफ गोल्ड और लीचिंग ऑफ आयरन की. सो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर. एक और यहाँ पर लीचिंग ऑफ सिल्वर का जो यहाँ पर लीचिंग ऑफ सिल्वर जो है वो आर्जेंटाइट ओर से भी करी जाती है. सिल्वर आर्जेंटाइट ओर जो कि आपका सिल्वर का सल्फाइड ओर है, Ag2S से भी यहाँ पर सिल्वर की लीचिंग करी जाती है. बट दैट थिंग इज़ नॉट मैंशनड इन डिटेल इन NCERT, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस थिंग here, but you can comment in the comment section if you want to understand the leaching of silver from the silver argentite ore. So that's all about leaching of aluminium and gold and silver, students. So you have to understand the things जो कि काफ़ी easy हैं यहाँ पर, and you have to write down the reactions. So if you will do all these things, you can easily score the marks in this type of question. So that's all about students leaching. Keep doing your revision, and all the best.